Okay, we'll start with the next part. I make that separate slide, aldehyde ketones and carboxylic acid part 2. Right? What we have to study? We have to study the chemical reactions of aldehyde and ketones. Okay, so यहाँ we have n numbers of reaction in this aldehyde and ketone. बहुत ज़्यादा reactions है इसमें. Some addition reactions are there, right? Then in that case, aldol condensation, Cannizzaro reaction, Wolff-Kishner reduction reaction. So n numbers of name reactions are also there. So we'll start with the first part immediately, that is chemical reactions of aldehyde and ketone with nucleophile. Right? यहाँ पे देखो क्या होता है. When we react aldehyde and ketone with a nucleophile, with nucleophile means what? Actually, this is a type of one type of an addition reaction. यहाँ पे आपका जनरली क्या हो जाएगा कि whenever we add HCN, right? ये एक एग्जांपल मैं I will directly start with the reaction itself. I have taken the example in this reaction, that is aldehyde ethanol. Okay, एक एग्जांपल लिया हुआ है ethanol. You know the structure of ethanol, that is CH3 CH double bond O. So when we are adding that HCN into the ethanol, तो देखो HCN में H के ऊपर क्या रहेगा, it will carries partial positive charge while Cn will carries partial negative charge. HCN में Cn minus रहेगा, right? So when you are going to add this into the CH3 CHO, you know that in C double bond O group, again that oxygen will carries what? It will carries the partial negative charge. ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? As it having partial negative charge, and the carbon will carries the partial positive charge. That is only because of the difference in their electronegativity, right? तो जब भी आप HCN को ऐड करोगे, right, तो यहाँ पे क्या होगा, जो CN है that minus it will combine with the पॉजिटिव पार्ट. मतलब जब ये एडिशन करोगे तो CN माइनस न्यूक्लियोफाइल जाएगा, अटैच हो जाएगा यहाँ पे कार्बन के ऊपर. सो देयर विल बी अ न्यू कार्बन एंड साइनाइड बॉन्ड विल बी देयर. सो दिस न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म CN. और ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा ना यहाँ पे ऑक्सीजन के पास. ऑक्सीजन विल कैरीज द निगेटिव चार्ज, और वो निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का जो है वो किससे कंबाइन होगा? H प्लस के साथ में, राइट? है ना? तो ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो आ गया वो कैरी हो जाएगा H प्लस के साथ में. सो H विल गेट डायरेक्टली कंबाइन विद द ऑक्सीजन एटम. तो यहाँ पे ऐड करते वक्त ध्यान देना, वॉट एवर निगेटिव पार्ट जो है that will get attached to the carbonyl carbon atom, while the positive part will get attached to the carbonyl oxygen atom, and in this way we will get the corresponding compound. This is your acetaldehyde cyanohydrine, right? As it is prepared from acetaldehyde, therefore it is called as a acetaldehyde cyanohydrine, right? तो ये एक it is a type of an addition reaction. Why we call addition reaction? Because देखो जनरली addition reaction में क्या होता है, A plus B it will give C, right? तो ये एक टाइप का addition reaction है. So in this way, first in this way we will get the final compound, that is acetaldehyde cyanohydrine. ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट रिएक्शन. तो ऑल जितने भी अभी रिएक्शंस इसमें दिए हुए हैं, वॉट एवर 4 रिएक्शंस आर मेंशन हियर, सो दे आर फॉलो द सेम टाइप ऑफ एन रिएक्शन. सो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से ही आपका ये आगे कंटिन्यू होगा, राइट? तो पहला जो रिएक्शन, सो आई टेक एन एग्जांपल, यू कैन टेक द जनरल रिएक्शन आल्सो, एंड वी कैन टेक एन नंबर्स ऑफ रिएक्शन. जरूरी नहीं है, मैंने एक ही एग्जांपल लिया हुआ है, तो आप उसमें और भी एग्जांपल ले सकते हो. जैसे इथेनॉल के जगह पे प्रोपेनॉल भी ले सकते हो, ब्यूटेनॉल भी ले सकते हो, राइट? द प्रोसेस व्हेन वी आर गोइंग HCN, द प्रोसेस विल रिमेन सेम. ध्यान देना, नंबर ऑफ कार्बन एटम इथेनॉल में 2 है, तो आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, उसमें चेंजेस नहीं हो रहा है, राइट? उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम अल्डिहाइड का जितना है उतना ही नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट मिला हुआ है उसमें मिल रहा है. नाउ coming to the next part. Now here coming to the next part, NaHSO3. So again in NaHSO3 में ये जो SO3Na जो है इसको आप इस तरह से भी स्प्लिट कर सकते हो. H को आगे लिख सकते हो, और अगर स्प्लिटिंग करना है तो H हमने पहले लिख दिया और हमने बाद में लिख दिया SO3Na. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये SO3NaH will carries the partial positive charge and SO3Na will carry the partial negative charge. तो ऑब्वियसली जैसे आप ऐड करोगे तो ये नेगेटिव विल गेट बॉन्डेड टू द कार्बोनिल कार्बन एटम एंड H विल गेट बॉन्डेड टू द ऑक्सीजन एटम. यहाँ पे आपको बॉन्डिंग दिखाने की जरूरत नहीं है. ऐसे रिप्रेजेंटेशन अगर आपने पेंसिल से दिखा दिया वेल एंड गुड, नहीं दिखाया तो भी चलेगा. आपका जो मेजर प्रोडक्ट है मिल गया, वो क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड. एज वी आर रिएक्टिंग aldehyde with the sodium bisulfide, so the corresponding compound is nothing but acetaldehyde sodium bisulfide. देख लीजिए यहाँ पे नया CSO3Na बॉन्ड बन गया है और दूसरा COH बॉन्ड बन गया है. राइट तो इस तरह से आप, यस बेटा. हाँ, या NaSO3H जो रहेगा वो पॉसिबल नहीं होगा इस केस में, बिकॉज ये आपका जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, हेलो, जब इट इज व्हाट प्रैक्टिकली प्रूवन रिएक्शंस होते हैं. मैंने आपको इसके पहले भी बता दिया था कि प्रैक्टिकली प्रूवन रिएक्शन होते हैं और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के जैसे बिहेव कर रहा है ये. राइट तो SO3H माइनस नहीं होगा उसमें, आपका SO3Na आपका जो SO3 रहेगा वो माइनस बनेगा और H प्लस में कन्वर्ट होगा. ठीक है, तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि आपको उस केस में ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से रिएक्शंस कंप्लीट हो रहा है. राइट तो एज पर दैट. हाँ, और दूसरी बात कैसे है कि जनरली इन दिस केस अगर आप देखोगे, राइट, in this all reaction the nucleophilic reagent brings about the reaction. Okay, and by attacking on positively polarized electrophilic carbonyl carbon. So इसलिए हमें है ना ये पर्टिकुलर रिएक्शन इसी फॉर्मेट में लिखना है, दैट इज नथिंग बट एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड. ओके, सेकेंड वाला देखिए, नेक्स्ट वाला. यहाँ पे मैंने एक कॉमन एग्जांपल लिया हुआ है. राइट ओके, तो एक कॉमन एग्जांपल लिया ताकि सारे डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने उसको एक ही फॉर्मेट में लिया हुआ है. राइट तो नेक्स्ट है, वी आर रिएक्टिंग दैट aldehyde CH3CHO with C2H5OH. पहले C2H5OH means what? Here we can say that is addition of alcohol. Please, addition of an alcohol into ethanol, or we can simply say that the reaction of an aldehyde with an alcohol. Right? So this is your two-step reaction. टू स्टेप रिएक्शन क्यों है? क्योंकि आप इसको वन स्टेप में भी कवर कर सकते हो, मैं बताऊंगा वन स्टेप में कैसे कवर करना है. इन द टू स्टेप रिएक्शन यहाँ पे देखो, यहाँ फर्स्ट दैट इथाइल अल्कोहल, वी हैव टेकन द अल्कोहल एज एन इथाइल अल्कोहल. तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इथाइल अल्कोहल को हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे. राइट अभी जब ये इथाइल अल्कोहल आप लिखते हो ना, तो देखो ये C2H5O, यहाँ पे O जो है वो रहेगा आपका माइनस पार्ट में चला जाएगा. ठीक है, C2H5O माइनस, तो ये ब्रेक कर दीजिए, ये O माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, H प्लस और O माइनस. सो एक आपके पास मिल गया है C2H5O माइनस और दूसरा H प्लस है. बराबर, तो जब ये एडिशन करोगे तो आपको वो एडिशन कैसे करना है मैं यहाँ पे मेंशन करके रख देता हूँ ताकि इजी जाएगा. ये ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव होता है, ध्यान देना, पार्शियल निगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा. राइट तो अभी यहाँ पे देखो C2H5O जो है वो क्या होगा, दैट विल गेट बॉन्डेड टू द कार्बन एटम. तो ये आपका बॉन्ड किससे बना देगा, कार्बन के साथ. तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, दैट इज O, कार्बन के साथ में O C2H5 आ गया. अभी रिमेनिंग जो H जो है वो H किससे अटैच हो जाएगा, दैट विल गेट अटैच टू दी ऑक्सीजन एटम. तो यहाँ पे OH को मैंने नीचे लिख दिया है. राइट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है. दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल विच इज अनस्टेबल. राइट ये हेमी एसिटल है और वो अनस्टेबल होता है. इसमें दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल अगर ऐड किया है, सो सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल गेट एडेड इनटू द सेम कंपोनेंट. तो क्या होगा, फिर से ये जो OH है ना, प्लीज, राइट ये आपका OH जो है, ये और H मिलके आपका H2 निकल जाएगा. ओके, सो इट एलिमिनेट दी वाटर मॉलिक्यूल्स और OH के जगह पे आपके पास क्या आ सकता है, ये OC2H5 आकर आ गया है. राइट सो वी गॉट करस्पॉन्डिंग कंपाउंड. अगर करस्पॉन्डिंग कंपाउंड का अगर आप चेक करते हो, ये लास्ट वाला जो कंपोनेंट है, तो ये लास्ट जो कंपाउंड है ना, इट इज नथिंग बट इन द फॉर्मेट ऑफ
ईथर के फॉर्मेट में है, तो वो उसको नेमिंग देखो कैसे किया हुआ है, दैट इज नथिंग बट 1,1 डाई इथॉक्सी इथेन। अभी इथेन ये दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज ए इथॉक्सी ग्रुप C2H5O, दैट इज इथॉक्सी। देखो हम लोग क्या करते हैं, ईथर में हम लोग कैसे लिखते हैं, ROR लिखते हैं, राइट। तो इसमें से एक कौन सा, एक ग्रुप क्या रहेगा आपका, अल्केन होता है, और एक ग्रुप क्या रहता है आपका, अल्कोक्सी होता है। तो RO ग्रुप विल बी कंसिडर एज एन अल्कोक्सी ग्रुप और R विल बी योर अल्काइल ग्रुप। अभी यहाँ पे देखो दो है, तो आपने उसको डाइथॉक्सी लिखा हुआ है, और नंबरिंग करते वक्त मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट कंसिडर किया, ये सेकंड कंसिडर किया है, तो फर्स्ट पे दोनों इथॉक्सी ग्रुप अटैच है, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ 1,1 डाइथॉक्सी, और दो कार्बन वाला अल्केन इथेन मिल गया, ठीक है। दिस रिएक्शन वन स्टेप में कैसे लिखोगे, अगर मुझे वन स्टेप में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, सो आई विल शो दैट वन स्टेप रिएक्शन। यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला रिएक्शन है, ध्यान देना, दिस इज। तो सपोज मैंने यहाँ पे अल्डिहाइड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग दी अल्डिहाइड लाइक दैट, ये हमने लिख दिया है CH3, ठीक है, C, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड O लिख रहा हूँ, राइट, और ये H यहाँ पे मैंने इस तरह से मोल्ड कर दिया अल्डिहाइड को, CH3C डबल बॉन्ड OH, राइट। और इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं ये अल्कोहल, तो हमने दो अल्कोहल, हमें दो अल्कोहल ऐड करना है, तो मैं उसको सेपरेटली लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे, दैट इज OH C2H5, ये एक मॉलिक्यूल, और दूसरा मॉलिक्यूल भी मैं यहीं पे लिख रहा हूँ COH C2H5, देखो, ठीक है, वी आर परफॉर्मिंग दिस रिएक्शन है, ध्यान देना, ये वाला रिएक्शन ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, वो क्या एक्चुअली अगर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए तो इसमें होता क्या है, इस तरह से रहेगा, देखो ये H2 एलिमिनेट हो जाता है, वन स्टेप वाला रिएक्शन, जिसमें से आपका H2O निकल गया, ये कार्बन का बॉन्ड फ्री हो जाएगा, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो कैसे मिलेगा, यहाँ पे CH3 है, ये C है, ये H एज इट इज, ठीक है। और ये देखो ये कार्बन का जो दो बॉन्ड C डबल बॉन्ड O था वो स्प्लिट हो जाएगा लाइक दैट, ओके। और यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट क्या आपके पास, OC2H5 और OC2H5, ये इस तरह से आपको कंपाउंड मिल गया है। इफ एनीवन राइटिंग इन दिस फॉर्मेट देन इट इज ऑल्सो ओके, प्लस यहाँ पे क्या मिल गया आपको, H2O, सिंपल। सो दो इथाइल अल्कोहल को आपने सेपरेटली लिख दिया, एंड व्हेन दैट aldehyde react with this molecule, so we will get the final compound, easy। सो दिस फाइनल कंपाउंड इज नथिंग बट दैट इज एसिटल, इसको एसिटल भी कहा जाता है, ये इसको है ना स्पेसिफिकली नेम है, एसिटल फॉर्मेट में होता है, एज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अल्डिहाइड, सो दैट इज कॉल्ड एज एसिटल। अगर कीटोन से बना है तो उसको कहा जाता है केटल, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हो गया इस पार्ट में, सो दिस इज IMP रिएक्शन, थोड़ा सा अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। सो टू स्टेप रिएक्शन कैसे होगा, जिसमें आपका पहले हेमी एसिटल मिलेगा जो अनस्टेबल होता है, फिर वो रिएक्ट होकर आपको फाइनल कंपाउंड एसिटल मिल जाएगा, लाइक दैट, ओके। सिंपल मैं बता रहा हूं, अगर आपने ये अल्डिहाइड जो है, राइट, अभी नाउ वी आर टेकन द अल्डिहाइड दैट इज इथेनॉल ना, इथेनॉल के जगह पे इफ यू आर टेकिंग कीटोन, कीटोन का एग्जांपल लोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल यहाँ पे CH के जगह पे क्या आप ऐड करोगे, मैं यहाँ पे दूसरा इंक ले लेता हूँ, ठीक है। कीटोन के केस में आई एम टेकिंग दिस CH3 लाइक दैट, ओके, ये देखिए मैंने CH3 ले लिया बस, और ये क्या बन गया आपका, कीटोन बन गया। कीटोन में अगर सेम ऐड करोगे तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी ओनली CH3, बाकी तो प्रोसेस सेम रहेगा, बट ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका केटल, केटल, ठीक है। तो इस तरह से ये नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है मैंने, तो again the same thing, सिर्फ only thing is that we are taken the final next that compound is a ketone, that is acetone या फिर propanol, the reaction will remain same, okay। So aldehyde gives acetal and ketone gives ketal when react with the alcohol, this is called as the addition of an alcohol, easy। एनी तो इसमें कुछ डाउट है क्या, कुछ को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लीजिए, अदरवाइज विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, यस, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, यहाँ पे लास्ट वाला रिएक्शन देखो, CH3MgI, CH3MgI जो होता है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, दैट इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ यू ऑल आर नो दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी डन, हमने पहले ही कर लिया है, राइट, प्रिपरेशन ऑफ एन अल्कोहल में, तो ये वापस से यहाँ पे आ गया,
right? So here in the preparation of an alcohol, so when we are adding Grignard reagent, देखो प्लीज बहुत सारे बच्चों ने ये रिएक्शन अभी TWT में पूछा था इसी टाइप का रिएक्शन, राइट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। सो यू आर नॉट मेंशनिंग ड्राई ईथर, आप प्लीज, अगर ड्राई ईथर नहीं मेंशन किया ना तो आपका हाफ मार्क कट हो जाएगा, और कट भी किया है, ठीक है? तो प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, वेन एवर वी रिएक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज RMGX, सो दैट रिएक्शन ऑलवेज टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर में होता है तो यहाँ पे ड्राई ईथर दिखाना बहुत जरूरी है, राइट? अदरवाइज यू विल लूज योर हाफ मार्क। नाउ CH3MgX, that CH3MgI is nothing but methyl magnesium iodide. Same thing. Now I don't think that I have to repeat the same reaction, बराबर, क्योंकि आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से ऐड किया जाता है। बट अगर किसी को रिवीजन के केस में मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, द फॉर्मेट विल बी सेम एज ऑक्सीजन विल कैरीज द नेगेटिव चार्ज और कार्बन विल कैरीज द पार्शियल। पार्शियल होता है, ध्यान देना, ये कंप्लीट नहीं होता है वो, राइट? तो पार्शियल, तो अभी आप CH3MgI को अगर आपने रिएक्ट किया एल्डिहाइड के साथ, Mg इट विल बी एक्ट एज अ पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन विल, मतलब CH3 ग्रुप विल एक्ट एज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, because of the electronegativity they will carry the partial positive and partial polarity will be developed। और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो CH3 है that will get bonded to the carbonyl carbon atom, और MgI will get bonded to the oxygen atom, and here we get the CH3CH CH3O MgI, that is Mg complex, so we get the intermediate Mg complex। Now again, some of the people written the reaction, they directly react CH3CHO, ठीक है, एंड दे डायरेक्टली मेंशन दिस प्रोडक्ट इंटरमीडिएट। यहाँ पे उन्होंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखा ही नहीं, तो अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखा ही नहीं तो आपका मार्क्स कटेगा उसमें से, ठीक है? कुछ बच्चों ने लिखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, राइट? तो आपको अल्डिहाइड के साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करना है कंपलसरी, उसके बाद Mg प्रोडक्ट लिखना है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई तरह। नाउ दिस इज फर्दर ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस पे ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे HOH ऐड हो जाएगा एज यूजुअल, और ये आपको मिल गया प्रोपेंटुऑल, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल, एंड प्लस MgIOH। सो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, एज आई टेकन द एग्जांपल ऑफ अल्डिहाइड दैट इज एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल, सो विल वी गॉट द प्रोपेंटुऑल व्हिच इज नथिंग बट सेकेंडरी अल्कोहल। हियर प्लीज we know that aldehyde, that is formaldehyde, I repeat the term formaldehyde, when it is react with the Grignard reagent it gives primary alcohol. Aldehyde other than formaldehyde, when it is react with the Grignard reagent it gives secondary alcohol, while ketone when it is react with the Grignard reagent it gives tertiary alcohol।